This is Lokesh. Welcome you all. In the last session, we had completed the fifth question of exercise 7.2. In this session, we'll be continuing with question number 6. So let us start. Question number 6 is one more thing. Please use your textbook. The sixth question is triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. We have an isosceles triangle ABC, and two things we have. If any triangle is isosceles triangle, then their sides must be equal. So if any triangle is an isosceles triangle, then कोई भी triangle isosceles triangle है तो उसकी कोई भी दो sides equal होगी. And in the question we have the two equal sides AB and second one AC. Okay. One more thing, if the sides are equal, when two sides are equal, then their opposite angle must be equal. ये हमको पता है. कोई भी triangle उसके two sides अगर equal है तो उनके opposite angles भी equal होते हैं. Okay. Further they have given that side BA is produced to D. BA को कहाँ से produce किया है? Till point D. Such that AD equals to AB. उसमें AB और AD ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में equal, ये given है. Okay. Show that BCD is a right angle. BCD means ये complete angle C को इसको हमको right angle show करना है, means 90 बताना है. Okay. First whatever given we'll write it. So given we have AB equals to AC. Okay. AB and AC both are equal. As well as we have AB equals to AD. The two things they have given. Okay. Clear. Now one more thing. What we need to find out, we have to prove that angle BCD is right angle. Angle BCD equals to 90 degrees. This thing we need to prove. Okay. So let us start. See, first, since we have AB equals to AC in triangle ABC, अगर मैं ये triangle ले लेता हूँ ABC फर्स्ट वाला, इसमें AB और AC इक्वल है. AB equals to AC और ये क्या है? गिवन है. AB equals to AC है, मीन्स क्या होगा? एंगल B को मैं क्या लिखूंगा? ABC. ABC equals to क्या हो जाएगा? एंगल C मीन ACB. एंगल ACB. Equation number 4. These two angles will equal. Okay. One more thing we have what? AB equals to AD. See, AB equals to AD, and as well as we have AB equals to AC and AB equals to AC. If AB equals to AD and AB equals to AC means AB AD के भी equal है, AB AC के भी equal है, means AD और AC ये दोनों भी आपस में equal होंगे. So therefore we can write AC equals to what? AD. So AC and AD both will be equal. If AC and AD is equal, then we can say the sides equal है तो opposite angle भी equal होंगे. मीन्स क्या हो जाएगा? एंगल D और एंगल C भी इक्वल हो जाएंगे. क्लियर. तो एंगल D को मैं कैसे लिखूंगा? एंगल ADC will equal to what? एंगल ACB. ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. क्लियर. अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए, क्वेश्चन नंबर सेकंड वन. ओके. अगर दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों के लेफ्ट पार्ट ऐड होंगे. तो एंगल ABC प्लस हियर वी हैव व्हाट? एंगल ADC इक्वल टू हियर वी हैव व्हाट? एंगल ACB प्लस हियर एंगल ACD. ओके. तो ABC प्लस ACD they will be written as it is. ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू ACB और ACD. ACB और ACD दोनों मिलकर कंप्लीट एंगल C होगा. वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ इट एंगल BCD लिख सकते हैं. इसको ये दोनों एंगल मिला के इक्वेशन नंबर थर्ड. अब अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इन ट्राइंगल विच वन BDC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके. अगर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाते हैं तो एंगल क्या होगा? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. एंगल B को मैं क्या लिखूं? एंगल DBC प्लस एंगल D को क्या लिखूं? एंगल BDC प्लस एंगल C को क्या लिखूं? एंगल BCD इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. अंडरस्टैंड.
अब देखिए बी एंगल डी बी सी में से एंगल बी की बात हो रही है, तो मैं डी बी सी ले लूं या ए बी सी ले लूं, आएगा तो एंगल बी। ओके, तो मैं इसको एंगल ए बी सी लिख दूं। क्लियर? एंगल बी डी सी, अब मैं बी डी सी लिखूं या ए डी सी लिखूं, बात तो एक ही है, इसको मैं ए डी सी कर देता हूं, प्लस एंगल बी सी डी है, डी इक्वल टू व्हाट 180, ए बी सी प्लस ए डी सी, ए बी सी प्लस ए डी सी विल इक्वल्स टू व्हाट ए सी डी बाय इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या हो जाएगा बी सी डी, और ये ऑलरेडी एंगल बी सी डी है, इक्वल टू व्हाट 180, BCD will become what 2 angle BCD, okay, equal to 180। ये 2 को इधर शिफ्ट करूँगा तो एंगल BCD इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, एंड दिस थिंग वी नीड टू शो। ओके, ये हमको प्रूव करना था। क्लियर है? दिस वाज द 6th क्वेश्चन। ओके, नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मींस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए 7th क्वेश्चन है क्या, ABC is right angle triangle in which angle A equals to 90। ओके, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल A 90 में यहाँ बनेगा, और ये B और ये C हो गया, एंगल A 90 है। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है AB इक्वल्स टू AC, और AB और AC इक्वल है, अगर ये दो साइड्स इक्वल हुई मींस ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मींस एंगल B इक्वल टू क्या आएगा एंगल C, और एंगल A ऑलरेडी कितना है 90 डिग्री। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, which one, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू व्हाट 180, तो A तो हमारा 90 है, B और C दोनों सेम है, तो एंगल B और C भी आ जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू व्हाट 180, तो 180 से 90 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 एंगल B यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल B हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर B 45 है तो C भी 45 हो जाएगा, और ये हमको फाइंड करना था। क्वेश्चन में लिखा गया लास्ट में फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, वन मोर थिंग, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। ओके, ऑल साइड की क्या होती है इक्वल होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, मैं सपोज मैं ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं, तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180, और तीनों एंगल इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए से बी को मैं बी भी ए के इक्वल होगा और सी भी ए के इक्वल होगा, इक्वल टू 180, तो ए क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 180, और वहां से अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करूं तो एंगल ए क्या आएगा मेरा 60 डिग्री, ए 60 हुआ तो रिमेनिंग बी और सी भी 60 होंगे। तो दिस वाज द exercise 7.2, and the next session the next video or further will continue with exercise 7.3. Here, so now we have completed exercise 7.2 and now we'll be starting exercise 7.3. Okay, so the very first question of exercise 7.3 is first that I draw the figure. Yes, so the question is, first one is see, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. We have two triangle ABC and triangle DBC, both have same base BC. दोनों में बेस क्या है सेम बेस है, बेस क्या है BC. फर्दर they have written that in vertices A and D are on the same side of BC. इस BC के सेम साइड टू vertices A और vertices D दोनों उसी के सेम साइड है अपवर्ड डायरेक्शन में. Okay, if AD is extended to इंटरसेक्ट BC at P, अब AB को थोड़ा एक्सटेंड किया जो कि क्या कर रहा है BC को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है. शो दैट, फर्स्ट देखिए हमको प्रूव क्या करना है, जो भी गिवन है वो तो हो जाएगा, प्रूव क्या करना है हमको. वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. फर्स्ट ये हमको प्रूव करना है. ओके,
Second, ABP is congruent to ACP. Triangle ABP is congruent to triangle. Which one? ABP is congruent to ACP. ACP. थर्ड जो है हमको प्रूव करना है क्या है? AP बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. AP bisect angle A as well as angle D, and finally fourth one that we need to prove, AP is the perpendicular bisector on BC. AP is perpendicular bisector of BC. ये चार चीजें हमको प्रूव करना है. ओके, तो देखिए क्लियर. ओके, सो देखिए ये चार चीज हमको प्रूव करना है. तो सबसे फर्स्ट गिवन सेक्शन क्या है? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन क्या है? टू ट्राइंगल ABB एंड टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल which one? DBC having same base BC और कुछ जो भी कुछ ए को एक्सटेंड किया, ये सब तो क्लियर. ओके, जो चार चीजें हमको प्रूव करनी है. देखिए सबसे फर्स्ट मुझे प्रूव करना है ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD. तो ये दो ट्राइंगल, देखिए दोनों ट्राइंगल है कहाँ? ABD इक्वल टू ACD. ये दो ट्राइंगल्स हमको लेके चलना है. क्लियर. क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोला नहीं है. आई थिंक आइसोसेलेस है या नहीं है. लेट मी चेक. टू आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्चुअली. ओके, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है. मींस ये साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. तो ये मुझे लिखना पड़ेगा AB इक्वल टू AC, और सेकंड थिंग क्या है? BD इक्वल टू 1 DC. ये गिवन है बिकॉज़ ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ओके, तो ये दो ट्राइंगल्स में लेके चलता हूँ, ये दो ट्राइंगल्स. ओके, तो प्रूफ फर्स्ट वन, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल विच वन? ACD. दोनों ट्राइंगल अगर हम लेके चलते हैं तो फर्स्ट क्या होगा? AB इक्वल टू AC. ओके, ये कहां से लेके आए हम? ये पोर्शन है जो गिवन है. सेकंड थिंग, सेकंड क्या गिवन है? BD इक्वल टू DC. ये भी गिवन है. ओके, so we can write BD equal to what? Which one? DC. This is also given. थर्ड थिंग में क्या लिख सकता हूँ? AD दोनों में कॉमन है. ओके, तो AD equal to what? AD ये है कॉमन साइड. तो देखिए यहाँ हमने तीन साइड को इक्वल बता दिया है. साइड साइड साइड. तो विच क्राइटेरियन वी कैन यूज? तो वी कैन राइट बाय साइड 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 ट्राइंगल विच वन? ABD is congruent to triangle ACD. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो पर CPCT में क्या लिख सकता हूँ? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे मेरे. और थिंग ओके, तो CPCT से मेरे ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे. तो आई कैन राइट बाय CPCT which one? एंगल BAD equals to एंगल CAD. I can write it. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, और भी मुझे किसी चीज की नीड लगती है तो मैं वहां इसके अकॉर्डिंग में उसको लेके चल सकता हूँ. सेकेंड पार्ट, सेकेंड में हमको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABP और ACP. सेकेंडली वी विल टेक इन ट्राइंगल which one? ABP and triangle which one? ACP. तो ये दोनों ट्राइंगल ABP और ACP, अगर ये दोनों ट्राइंगल में लेके चलता हूँ. ओके, यहां मुझे क्या बताना है? देखिए फर्स्ट तो AB इक्वल टू AC, ये ऑलरेडी गिवन है, ये हम ले सकते हैं. ओके, सेकंड ABP ये कंप्लीट ट्राइंगल और ACP ये कंप्लीट ट्राइंगल. सेकंड थिंग में क्या ले सकता हूँ? ये दोनों एंगल है जो मैंने अभी प्रूव किए. ओके, तो एंगल विच वन? BA विच वन? एंगल BAP इक्वल टू आई कैन राइट एंगल CAP, और वी कैन राइट प्रूव्ड अबाउट ये चीज. ओके, जो अभी मैंने हमने प्रूव किया है इसको मैं यहाँ तक नहीं लेते हुए D तक नहीं लेते हुए P तक ले लूँ. थर्ड थिंग मेरा क्या है? AP जो है वो कॉमन है. तो AP इक्वल टू AP ये कॉमन साइड होगी. तो यहाँ हमने क्या प्रूव क्या कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल एंड साइड. ओके, सो वी कैन राइट बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल विच वन? ABP विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए मींस मैं ये ले सकता हूँ ये दो एंगल एक्चुअली दीस आर नॉट राइट एंगल.
तो मैं लिख सकता हूँ बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हो जाएंगे। एंगल विच वन, ए पी बी विल इक्वल टू एंगल ए पी सी। इक्वेशन नंबर सेकंड, इतना क्लियर है। ओके, पहले हम ये दो ट्राइंगल लेके चले, सीपीसीटी से ये बता दिया, इन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके, फिर ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल ले लिए। फर्दर अगर वो भी नीड होगी तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए ओके, इसके आगे जो हमको करना है थर्ड पार्ट, देखिए वन मोर थिंग। अब ये जो साइड है, ये जो साइड थी, इसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया था, मैं डेफिनेटली एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी, बिकॉज ये बिल्कुल यहाँ से होते हुए जा रही है, डी को भी बाइसेक्ट करेगी। अब डी को बाइसेक्ट कैसे करेगी, शॉर्ट में देखिए, डी को बाइसेक्ट करने के लिए अगर मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे बताऊंगा? इन ट्राइंगल वी कैन राइट इन ट्राइंगल विच वन, बीपीडी, एंड ट्राइंगल विच वन, सीपीडी। दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। ओके, ये एंगल जो है वो एंगल इक्वल है ऑलरेडी। ओके, और मैं एक चीज और ले सकता हूँ, वो एक और क्या है कि यहाँ से मैं इसको डीपी डीपी में कॉमन ले लूँ, अंडरस्टैंड? इस एंगल को हमको इक्वल शो करना है। अभी हमने एक चीज बताई थी कि ये इसका ये पोर्शन वो एंगल इक्वल हुआ था, यहाँ ये एंगल भी इक्वल आ सकते हैं। क्लियर है? हम एक सेकेंड थिंग क्या बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं। ओके ओके, तो ये चीज भी हो सकती है। एक और हमारा ये हो सकता है कि मैं इसको, जो मैंने ऊपर ट्राइंगल बताया था, कौन सा ट्राइंगल ए बी पी और ए पी सी, ये पूरा बताया था, तो उससे मेरी ये साइड बी पी और सी पी ये बता सकता हूँ ना एक बार। तो इसकी जगह मैं लिख दूँ बी पी इक्वल टू सी पी, प्रूव अबाउट इसी में। और लास्ट थिंग क्या हो जाएगी, डी पी कॉमन है, तो डी पी इक्वल टू डी पी ये कॉमन है। अगर इतना हो गया, तीन साइड इक्वल होगी, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल वी कैन राइट बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय सीपीसीटी हमारा क्या आएगी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मींस ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल क्या हुआ, बीडीपी, एंगल बीडीपी इक्वल टू एंगल सीडीपी। ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ओके, तो इक्वेशन नंबर ये जो भी है हमारी थर्ड है, जो भी है, तो उससे क्या होगा, देखिए पहले हमने एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब एंगल डी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मींस एपी जो है वो क्या करेगा, एंगल ए को भी डिवाइड करेगा और एंगल डी को भी डिवाइड करेगा। So therefore we can write AP will bisect what, angle A as well as we can write angle B। तो ये दोनों एंगल्स को डिवाइड कर देगा। अभी इतना क्लियर होने के बाद लास्ट जो है हमको प्रूव करना है AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। AP जो होगा BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अभी हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे हमको कोई भी एंगल 90 बताना है। ठीक है, देखिए मैंने एक चीज यहाँ बताई थी, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन को इसके ऊपर लाई कर दी, तो दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। ओके, तो मैं यहाँ से एक चीज ले लूं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। क्लियर, ये 180 डिग्री होगा। ए बी बी और ए पी सी हमने पहले बताया था कहीं कि ए बी बी और ए पी सी दोनों इक्वल है। I think I have not written it, yes, APP और APC इक्वल है, तो APB और APC दोनों आपस में इक्वल इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ से किसी एक को मैं रिप्लेस कर दूँ। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल APB प्लस APC को इक्वेशन सेकंड से मैं APB लिख दूँ, एंगल APB इक्वल टू व्हाट, 180। APB क्या होगा, टू एंगल APB इक्वल टू विल गेट व्हाट, 180 डिग्री। तो एंगल APB हमारा क्या हो जाएगा, 90। APB अगर 90 हुआ तो APC भी 90 होगा। क्या होगा, ये 90, अब दोनों 90 हो गए। और BP इक्वल टू BC तो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। ओके, तो डायरेक्टली वी कैन से फाइनली फोर्थ वन, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ विच वन, BC। तो ये हमको चार चीजें प्रूव करनी थी, ये कर दी। पहले हम ये दो ट्राइंगल लेके चले, इसको कॉन्ग्रुएंट शो किया साइड से, तो ये दोनों एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। फिर ये पूरा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिए हैं हमने, सेकेंड वन ये फिर से साइड एंगल साइड से। ओके, सीपीसीटी से हमारे ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये बीपी और बीसी भी इक्वल हो जाएगा। थर्ड थिंग में हमने ये एडी और एंगल ए और एंगल डी का इक्वल बता दिया दोनों पार्ट। ठीक है, और फोर्थ में हमने क्या कर दिया कि यहाँ 90 शो कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन।
ओके सेकंड क्वेश्चन, प्लीज यूज योर टेक्स्ट बुक। सेकंड क्वेश्चन जो है क्या है, एडीज एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ए मींस वो 90 ऑलरेडी बनाएगा। एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच AB इक्वल्स टू AC सो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल है। सिंपल सा है, बस हमको ये स्टेप्स का फिगर है ABC और ये AD ऑलरेडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। ओके यहाँ ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर बनाएगा। क्या है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ABC एंड AB इक्वल्स टू AC, और AB और AC ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है। सो दैट AD बाइसेक्ट BC, तो AD बाइसेक्ट BC ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, तो CD से BD इक्वल्स टू BC हो जाएगा। तो AD हम लिख देंगे कि AD बाइसेक्ट BC, और सेकंड में हमको क्या बताना है, इसमें AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। ओके तो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो सीधी से ये दो पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो सिर्फ इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, सिंपलिसिटी से हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। ओके दिस वाज द सेकंड वन। नाउ we'll move toward the third question. Yeah, question number third one is what, two sides AB and BC and median AM of triangle ABC. First we have triangle ABC। देखिए क्या बता रहा है, two sides AB and BC, side AB और side BC, okay, and median AM, okay, median AM of triangle ABC are respectively equal to side PQ, QR and median PM of triangle PQR। PQ, QR और PM मींस AB PQ के इक्वल है, BC जो है QR के इक्वल है, और मीडियन AM मीडियन PM के इक्वल ये गिवन है। ओके प्रूव क्या करना है, देखिए हमको क्वेश्चन में शो दैट द फर्स्ट वी विल राइट गिवन AB equals to what, this one PQ, secondly we have BC equals to what, QR, and third thing we have AM equals to what, PM। ये तीन चीजें ये इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। प्रूव क्या करना है, देखिए हमको फर्स्ट थिंग ट्रायंगल AMB is congruent to triangle AQN, AMB, triangle AMB actually, AMB is congruent to triangle PNQ, I think, yes, PQN, triangle PQN, AMB and PQN, ABM, it should be ABM, yes, ABM is congruent to PQN, ABM is ये triangle छोटा वाला और ये आगे वाला छोटा वाला, ये दो triangles को हमको congruent बताना है। And second one we have to show that triangle, which one, triangle ABC is congruent to triangle PQR, triangle ABC is congruent to triangle PQR। देखिए ये दो triangles हमको congruent शो करना है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू PM, फिर ये और ये है। थर्ड थिंग जो है वो हमारी है, क्वेश्चन में एक चीज बोला था कि AM और BN ये दोनों जो है मीडियन है। देखिए प्रूफ, सिर्फ AM एंड सेकेंड AM एंड PM ये आई थिंक मीडियन है। क्वेश्चन में बोला है दीज आर द मीडियन, ओके, आर मीडियन, ये दोनों अगर मीडियन है, ओके, मीडियन से मीडियन विल डिवाइड द गिवन साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, ओके, मींस वन मोर थिंग, ये मीडियन है और BC इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, BC इक्वल्स टू QR, ये गिवन है। अगर मैं BC का हाफ कर दूं, दोनों का हाफ से मल्टीप्लाई करूं, हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR, तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा BM और हाफ ऑफ QR क्या हो जाना है QM। तो BM इक्वल टू क्या हो जाना है QM, बिकॉज इसकी हमको आगे जाके नीड है, मीडियम है तो मीडियम उस लाइन को क्या करेगी, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ओके फर्दर नाउ वी हैव टू प्रूव फर्स्ट ट्रायंगल ABM and APQN, we need to prove that these two triangles should be congruent। okay so I am going to take these two triangles, first triangle ABM and I am going to take the second triangle which one, PQN, okay so in these two triangles wait, yes so in these two triangles we need to prove these two triangles should be congruent। okay so ABM और PQN में देखिए फर्स्ट थिंग AB equals to PQ, ये गिवन है,
So we can write AB equals to what? PQ. It is already given. Second, we can write what? PM equals to QM. BM equals to what? QN by equation second. We have equation first. We have proved. Okay. Third thing, we can take AM equals to PN. So AM equals to what? PN. And this thing it is also given. Okay. So here what we can see, we can see that in side we have shown any three sides of these two triangles. Okay. So we can write what? By side triangle ABN is congruent to triangle what? PQN. क्लियर है? इसकी ये साइड BM इक्वल टू QN हमने ऊपर शो किया है और AM इक्वल टू PN ये ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. बाय CPCT व्हाट वी कैन राइट? बाय CPCT वी कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल Q. तो B को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ABM इज इक्वल टू व्हाट? एंगल PQN. ये मैं लिख सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब सेकंड में मुझे क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट बताना है. तो नाउ in triangle ABC and triangle PQR, what we can write? First, AB equals to BQ. ये given है. This given. Second we can write which? Angle ABC equals to angle PQR. ABC equals to angle PQR by equation सेकेंड में था हमने सेकेंड इक्वेशन ABM इक्वल टू PQN बताया. ABM लिखूं मैं या ABC लिखूं? आना तो एंगल B है. PQN लिखूं या PQR लिखूं? आना तो एंगल Q है. ओके. तो इक्वेशन सेकेंड में हमने ये बताया है. थर्ड थिंग, BC और QR ऑलरेडी गिवन है. BC इक्वल टू QR. वी कैन राइट BC इक्वल टू व्हाट? QR. तो हियर वी हैव शोन बाय साइड एंगल इन साइड. बाय साइड एंगल इन साइड. बाय side angle sides, triangle ABC will congruent to triangle which one? PQR. ये दोनों congruent हो जाएंगे और सेकंड में हमको यही प्रूव करना है. ओके. दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. ओके. So this was the third. Now we'll proceed towards the question number fourth. See, what is the fourth one? BF and CF are two इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. देखिए ये एक ट्राइंगल है अपना, ट्राइंगल ABC. BF whatever BF और B and CF. तो BE और CF ये दो एल्टीट्यूड है और दोनों एल्टीट्यूड्स क्या है? इक्वल है. टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. Prove that the triangle ABC is isosceles. RHS यूज करके हमको बताना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस में या तो हम AB इक्वल्स टू AC बता दें या एंगल B इक्वल्स टू हम एंगल C बता दें. दोनों में से कुछ भी होगा तो हो जाएगा. देखिए अगर ये दो ट्राइंगल लेके चलता हूं मैं, कौन सा ट्राइंगल? विच वन? BCE ये ट्राइंगल. ओके. और सेकंड वन ट्राइंगल CFB ये ट्राइंगल. तो इन दोनों में देखिए क्या होगा? BE इक्वल्स टू CF होगा. ये ऑलरेडी गिवन है. ओके. ये ऑलरेडी गिवन है बिकॉज तुमने बोला है क्वेश्चन में कि टू इक्वल एल्टीट्यूड. तो B इक्वल्स टू CF है. सेकंड एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल CFB. ये दोनों 90-90 है. ओके. और थर्ड थिंग BC इक्वल्स टू BC ये कॉमन है दोनों में. तो यहाँ हम कौन सा यूज करेंगे? बाय RHS दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और बाय CPCT हम क्या शो कर देंगे? एंगल B equals to angle C. और अगर एंगल B equals to C हुआ then we can say triangle ABC is an isosceles triangle. Okay. This was the fourth you have to solve. Question number 5. ABC is an isosceles triangle. देखिए fifth one. ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. अब एक isosceles triangle given है ABC. ABC और AB equals to AC ये given है. Okay. ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC. अब AP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं BC पे. ओके. परपेंडिकुलर मींस 90 फॉर्म करेगा. शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. तो ये दोनों 90 होंगे. तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर दें. कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे? ट्राइंगल APB और APC. AB इक्वल्स टू AC फर्स्ट थिंग.
Okay. Second thing, we can take what? Angle APB equals to angle APC. Both will be right angle. Okay. 1990, or third thing, we can take AP common. The same rule which we have used in fourth one. Okay. Same rule we have to use here. By RHS, these two triangles will be congruent, and if these triangles are congruent, then we can write what? Angle B will equals to what? Angle C by CPCT. दोनों triangles को congruent बताना है RHS से, CPCT से angle B और angle C equal हो जाएगा. So this was the exercise 7.3, and the next video will continue with exercise 7.4, I think, or whatever it will be. Okay, thank you.